Hello student, today we will learn inter first year physics. Very important question. Okay, very short answer question VSAQ. Okay, first part 30 questions. In these 30 questions, I think there will be minimum 6 questions compulsory in your exams, AP board and Telangana board. This is first part. Okay, if you solve the first part, you will get about 6 questions, and when you solve the second part, when you learn the second part, you will get minimum 8 to 9 questions. Okay, if you want to get 100 questions, all the 10 questions VSAQ, you must learn also part 3, part 1, part 2, part 3. So part 1 is very important. Okay, now we are going for the first questions. Okay, why does a real gas behave like a ideal gas? Ideal gas. This is the first questions. Okay, so what is the answers? Real gas. What is real gas? Oxygen, carbon dioxide, nitrogen gas. These all gas are real gas, and this real gas do not follow the ideal gas equations. So when real gas become ideal gas? So your answer is at very low pressure and high temperature. At very low pressure and high temperature, real gas behave like ideal gas. Okay, now we'll go for second questions. The absolute temperature of a gas is increased by 3 times. What will be the increase in the RMS velocity of the gas molecules? So you see here now, increase by 3 times. Okay, so temperature increase 3 times. Okay, so right here, what is RMS velocity? So right here, VRMS, right here answer, VRMS equal to how much? 3 kT by m, 3 kT by m under root. VRMS 3 kT by m root under root. So VRMS is directly proportional to temperature. VRMS is directly proportional to under root T. From this equation, we can get V2 by V1 equal to T2 by T1 under root. Okay, from the question given that, what is given? Temperature T1 equal to how much? T, and T2 equal to how much? 3T. So we put the value of T here, T1 place T, and T2 value how much? 3T. Okay, after putting the value V2 by V1 equal to T2 equal to how much? 3T by T under root. TT cancel. Okay, now V is the dividing part, this go this side. So V2 equal to how much? Root 3 V1. Root 3 V1. Now we have to write increase of temperature. Increase of temperature means V2 minus V1. V2 minus V1. V2 minus V1. That is called increase of temperature. What is the value of V2? V2 is given here, root 3 V1. How much? Root 3 V1 and minus V1. This is called increase of temperature. So now right here, V1 take common. Here root 3, here 1. V1 is common, so root 3 is left here, 1 is left here. What is the value of root 3? Root 3 value how much? Root 3 value 1.732. So put here V1 bracket 1.732 minus 1. After do subtraction, what will you get? You will get 0.732 V1, and that is equal to how much? 73.2%. That is the increase of the temperatures. Okay, this question is very important questions. Now go for question number 3. State the Dalton's law of partial pressure. What is the Dalton's law of partial pressure? We take a vessels. Okay, in this vessel you can put 2, 3, 4 gas. Okay, this gas exact pressure on the wall of the vessels. These gases, different gas. These gas are called non-reacting gas. They do not react. Okay, so they exert pressure on the vessels. So how will we explain the Dalton's law? According to Dalton's law, right here answer. According to Dalton's, total pressure of non-reacting gas in a vessel
total pressure exerted by the non-reacting gas in a vessel is equal to the sum of pressure of each gas in a vessels. See now here, the total pressure exerted by the first gas, second gas, third gas, fourth gas. So sum of this all pressure is equal to the total pressures. So total pressure is capital P, and pressure of the first gas P1, second gas P2, and third gas P3 plus Pn. Okay, this is called Dalton's law of partial pressures. Okay, next questions. Explain conduction, convection and the radiations. What is conduction, what is convection, or what is radiation? So first write here, what is conduction? What is conductions? So actually these are the method of transfer of heat, conduction, convection and radiation. So write here, the transfer of heat. This is the process. You can write it is a process of transfer of heat. You can also write like this, it is a process of transfer of heat without the movement of particle of medium, without the movement of particle of medium, from one region to another regions. So simply example is heating of rod. Is this example right? Heating of rod. If you heat the rod one end, what happens? The heat energy transfer from one place to another place, one region to another region. Transfer of heat from one region to another region, that is called without the movement of the particles. In conductions, only the particle of the medium, particle of the rod vibrate. They will not move. Okay, so not involved. It is not involved. It is a process of the transfer of heat without the movement of particle. Particle of medium do not move. Okay, what is conduction? Same thing right here. It is a process of the transfer of heat. It is the process of transfer of heat with the movement of particle of medium. Okay, enough. I can write here hotter part to colder part. Hotter part to colder part. Hotter part to colder part. So write here examples when you are heating the liquid here. So liquid from here get heated. This one heating up. So this heat transfer to this part. So what happened? Particle is movement. Movement of particle is there. With the movement of particle of medium from hotter part to colder part. From hotter part to colder regions. Hotter region to colder region. That is called convection. This is called convection. And what is called radiations? What is radiation? Radiation, again right here, it is a process of the transfer of heat without the help of the mediums. Examples: radiation from sun to earth. So earth got heated up. So this is example of radiation without the help of the medium. It is a process of the transfer of heat without the help of the medium. Radiations. Okay, like radiation from sun to earth. So heating of earth is due to the radiations. Okay, now we will go for next questions. Why pendulum clock generally go fast in summer and slow in winter? So you know pendulum clock have the needles, no? That is called hours hand, minute hands. Okay, so length of the hand. Okay, so right here, what happened here? Answer right here. So time period is equal to formula, 2 pi root under L by G. This is the formula for time period. T equal to 2 pi root under L by G. Here time period is directly proportional to root L. From this equation, right? Time period is directly proportional to root L. What does it mean? So when the length increases, time period increases. When length decreases, time period also decreases. Then what happens in winter? Right here, in winter what happens? Metal
metal contract due to low temperature. Due to low temperature, what happen? Metal contract. So length of our hands or minute hands decreases. So length decreases. Length decreases. So length decreases means time become less. Length decreases, time becomes less. Length increases, time become high. So length decreases, so slow time. So right here in summer, same thing, right? Metal expand. What happened here? Right here, metal expand. So when what happen? When metal expand due to high temperature, in summer, summers, what happen? The length increases. So length increase means time period fast. So right here, length increase, so time period is fast. Okay. Next questions. State the Newton's law of coolings. This is also very, very important question. What is state the Newton's law of cooling? Write the definitions. Okay. So how do we write the definitions? So write here, heat lost due to the bodies. Okay. So what is the Newton's cooling? That definition here, dq by dt, okay, equal to proportional to T minus Ts. This is called equations. So heat lost by the body is directly proportional to what is your TB, the temperature of the body, minus the temperature of the surroundings. Okay. So how to write definitions? Right here, heat lost or gain of the body is directly proportional to the average, to the difference of average temperature of body and surrounding temperatures. So heat lost or gain of the body is directly proportional to the difference of TB is the average temperature of body and Ts the surrounding temperature. This difference, what is this one? TB, the temperature, average temperature of the body, and Ts is surrounding temperature of the body. This difference is directly proportional to dq by dt, that is called heat loss. Q is heat energy and T is the per unit time, that is temperature. Okay, capital T also we can write. Okay, so we'll go for question number 7. Question number 7, why are drops and bubbles are spherical? Why are the raindrops and soup bubbles are spherical in shape? So right here answer. Okay, at given volume, minimum surface area. At given volumes, minimum surface area due to the surface tension. Due to the surface tensions, minimum surface area should be there. Okay, at the fixed volume. Okay, therefore the raindrop and bubbles are spherical in nature. You have to remember due to the surface tensions and minimum surface area and at the given volumes. Okay, now go for next question. Give expression for the excess pressure in liquid drop और एयर बबल. दो में से कोई सा क्वेश्चन आ सकता, लिक्विड ड्रॉप भी आ सकता, एयर बबल भी आ सकता. सो कंफ्यूज नहीं करना, दो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक लिक्विड ड्रॉप एक एयर बबल. आंसर क्या लिखेंगे कि प्रेशर इक्वल टू क्या लिखेंगे 2T by R, स्मॉल आर लिखिए 2T by R, वेयर P इज प्रेशर and T is what happen? Surface tension. And what is R? That is called R is the radius. R is the radius of the air bubble or soap, liquid drop और एयर बबल. R is the radius of liquid drop और एयर बबल. दो क्वेश्चन है, एक जगह दोनों क्वेश्चन कर, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गिव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर ऑफ द सोप बबल. क्या है सोप बबल में क्या लिखेंगे? P इक्वल टू क्या लिखेंगे 4T by R. वेयर T इज व्हाट इज T? T इज द सरफेस टेंशन. C is the surface tension and R is the radius of the soap bubble. सोप बबल में लिखना है 4T by R और एयर बबल में लिक्विड ड्रॉप में क्या लिखना है 2T by R.
बिल्कुल ध्यान से। दो पूरे क्वेश्चन कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। एक हो गया एयर बबल, लिक्विड ड्रॉप, दोनों का आंसर क्या है 2T/r। ऑसो बबल का क्या है 4T/r। टी क्या है सरफेस टेंशन और आर क्या है रेडियस, क्या है रेडियस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, दिस क्वेश्चंस, ओके, so we have to learn here what is angle of contact. Okay, so the angle made by the tangent right here. Okay, this is the liquid is there. Okay, this is the body. Okay, this is the water and this is the body, solid body is there. So this is the surface of the contact. Okay, the angle made by the tangent, first how will you write the definitions right here, answer. Angle made by the angle made by the tangent to the surface, tangent to the surface, tangent to the surface at liquid surface, angle made by the tangent to the surface, okay, of liquid, okay. So and with the solid surface, because solid surface is there, so this solid surface is there, so with the solid surface, and here you can write here at the point of contact, at the point of contact, in bracket you can write angle made by the tangent to the surface of the liquid at the point of contact with the solid surface, with the solid surface. Okay, that is called angle of contact. So angle made by tangent to the surface of liquid and with the solid surface, at which place, at the point of contact. You have to break this question 3 part. Angle made by tangent to the surface of liquid with the solid surface. Okay, so this and this is called angle of contact. This is the solid surface and this is the tangent, this is the tangent, this is the tangent, this is the solid surface. Okay, this angle is called angle of contact. And for water angle of contact should be 0 and mercury how much 140. And the next question, what is the Wien's displacement law? What is the Wien's displacement law? So according to Wien's displacement law, lambda m inversely proportional to temperature, lambda m inversely proportional to temperature. Okay, when T go this side, when they, so right here lambda m into T equal to how much constant. This is called Wien's constant. It's called Wien's constant, and that value is 2.9 into 10 power minus 3, 10 power 2.9 into 10 to power minus 3. How will explain? What is lambda? Lambda is the wavelength. Okay, lambda is the wavelength. So right here the wavelength corresponding to the given maximum energy, the wavelength corresponding to the given maximum energy that is emitted by the black body, that is emitted by black body is inversely proportional to temperature, is inversely proportional to the temperature. The wavelength corresponding to the given maximum energy that is emitted by the black body is inversely proportional to the temperature. That is called Wien's law. That is called Wien's law. Okay. Next question. What are the lower and upper fixed point of Celsius and Fahrenheit scale? माने कि Celsius scale का upper limit क्या होता है, lower limit क्या होता है? Right here Celsius. Right here Celsius. Right here answer Celsius. Okay. So let here lower limit. Here right upper limit. Here write difference. Here write different. Here write Fahrenheit. So lower limit how much? 0 degree centigrade. Here 100 degree centigrade. Difference how much? 100 degree. Fahrenheit 32 degree centigrade. Here how much? 212 degree. Here 180 degree. देखिए ये सेल्सियस का कितना है, लोअर लिमिट 0, इसका अपर लिमिट 100,
फ़ारेनहाइट का 32 एंड इसका है 212, डिफरेंस है कि 180। ओके, दैट्स द फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ते होंगे, C/100 इक्वल टू F-32/180. By this formula we can calculate the Fahrenheit and centigrade formula. Okay, next question, what is the greenhouse effect and explain the global warming? What is the global warming? Okay, so right here answer, what is the greenhouse gas and what is greenhouse effect and global warming? Global warming क्या है और greenhouse effect क्या है, ध्यान से सुनिए। right here, heating up of the earth surface, right here, heating up of earth surface and greenhouse gases, heating up of earth surface and greenhouse gases due to absorption and reflection of radiation of sun. Okay, so this effect is called greenhouse effect. This effect is called greenhouse effect. It's called greenhouse effect. And what is the global warming? That is, what is global warming? Okay, so right here, heating of earth atmosphere, due to the greenhouse gases, heating of earth atmosphere due to the greenhouse gases is called global warming. And you know, due to the global warming क्या होता, आइस, जो पोलर आइस क्या होता, मेल्ट होता। ठीक से देखिए लैंग्वेज में, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किसको बोलते, सन से जो रेडिएशन आता, जो अर्थ हवा में जो गैसेस है, जैसे CO2 है, N2O है, ये गैस है, और ये जो अर्थ सरफेस है, दोनों क्या होता, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता। ये गैस भी एब्जॉर्ब कर लेती और अर्थ भी एब्जॉर्ब कर लेती। उसके बाद दोनों क्या करती, दोनों हीट को निकलती, दोनों से निकलने से एब्जॉर्ब कर, दोनों से क्या होता कि आप लोग क्या होता, जो इसको बोलते ग्लोबल वार्मिंग, क्या था, ग्लोबल टेम्परेचर क्या होता, इंक्रीज कर जाता। ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ जाने को बोलते ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर इज कॉल्ड हीटिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस is called global warming. And what is the reason? The temperature of global temperature increases. That is called global warming. Next question. Define mean free path. Mean free path किसको बोलते हैं? देखिए मीन फ्री पाथ क्या है कि आप यहाँ पर रख लीजिए, आप एक आपके पास वेजल्स है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल यहाँ इससे कोलिजन करेगा और फिर यहाँ के इससे टकराएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा। देखिए तो ये फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार कोलिजन हो रहा, इससे कोलिजन करेगा, इससे कोलिजन करेगा, टकराएगा, टकराने को बोलते कोलिजन बोलते। तो इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस को बोलते एल बोलते। क्या बोलते? इसको बोलते मीन फ्री पाथ बोलते, एल बोलते। व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैसेस। राइट हियर आंसर, द distance traveled by the gases, distance traveled by the gases, okay, due to between two successive collisions is called mean free path. Okay, so mean free path is, that is called L. L is equal to how much? 2 pi ND. So L is equal to how much? 1 by 2 pi ND square. 2 pi ND square. What is N? What is N? That is, N is called molecular density and D is called diameter. N is called molecular density and D is called, what happened? Diameter. It is called diameter of molecules. Okay, question number 15. Now we will go for question number next. Okay, अब हम लोग देखेंगे question number 16, discovery of C.V. Raman. Discovery of C.V. Raman. So right here, a scattering of light. Answer here, right? A scattering of light
by molecules, scattering of light by molecules in a mediums. Okay, so and what they discovered? They discovered Raman effect. They discovered Raman's effect. Okay, so what is discovery of C.V. Raman? A scattering of light by the molecules in a medium. Okay, this is called Raman effect. Okay, now question number 17. What is the contribution of Chandrasekhar? Okay, so write here answers. Chandrasekhar limit. Chandrasekhar limit. व्हाट इज द चंद्रशेखर लिमिट? ये लिमिट क्या है? इस चंद्रशेखर ने क्या कंट्रीब्यूशन था? उन्होंने बताया था स्टार के बारे में, स्टार कैसे बनता और कैसे वो डेड होता, यानी बनने से लेकर डेड तक का जो पूरा प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन किया किसने? चंद्रशेखर ने। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बोलिए इसको? ही वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ही वर्कड ऑन स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार, यानी स्टार का स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे बना, इवोल्यूशन मतलब वो कैसे बना उसके बारे में है, उसको बोलते हैं हम लोग चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। और ये कंट्रीब्यूशन किसका है? चंद्रशेखर का है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर? नेचर में कितने टाइप्स के फोर्स एक्ट करते, क्या क्या फोर्स है बताना है आपको। बहुत कॉमन है। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई चीज़ को उठाते नीचे गिर जाती, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या एक है नंबर 2 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे जो करंट का वायर है या मैग्नेट है उससे जो फोर्स निकलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद अगला है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता, न्यूट्रॉन होता, उस प्रोटॉन्स में कितना अट्रैक्टिव पावर है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कितने हैं? 3 हैं। पहला आपका है क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और नंबर 3 है आपका न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स 2 तरह का हो सकता है, या तो वीक होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? वीक और स्ट्रॉन्ग, 2 तरह का फोर्स है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स नेचर्स। अगला क्वेश्चन है हाउ द सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज? सिस्टमेटिक एरर को आप कैसे कम करेंगे? हाउ एक सिस्टमेटिक एरर बी मिनिमाइज, यानी सिस्टमेटिक एरर को आप कैसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। पहला आपका आंसर पॉइंट है आंसर्स का इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी एक्सपेरिमेंट करने की जो टेक्निक है उसको आप क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। नंबर 2 में क्या है कि सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, यू कैन सिलेक्ट बेटर इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 में क्या देखिए? सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, यानी आप अगर अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और अच्छा टेक्निक यूज़ करेंगे तो सिस्टमिक एरर को आप क्या करते हैं? मिनिमाइज मतलब कम कर सकते हैं। आप कैसे कम करेंगे? अच्छी टेक्निक और अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जरिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इन किलोग्राम। आपको AMU को किलोग्राम में चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो 1 AMU, इसका आंसर लिखिए आप। 1 AMU इक्वल टू होता 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन C6H12, 1/12 ऑफ मास ऑफ C6H12 होता। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है ये इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ये कैंसिल होता, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया था इसका आंसर था आपको 1.67 इंटू 10⁻27। क्या था? -27 किलोग्राम। सो ये वैल्यू जो किसकी है? 1 AMU की है। किसकी वैल्यू ये? 1 AMU। सो 1 AMU इक्वल टू होता आपको 1.67 इंटू 10⁻27 kg। सो आप इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होता आपका।
यू आप यहाँ भी लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 27 kg लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दोनों में क्या फ़र्क है वो लिखेंगे। देखिए एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। सो राइट हेयर आंसर, इट इज डिफाइंड एज क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। इट इज़ अ क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। और प्रिसीजन क्या है, क्लोजनेस एमोंग ऑल द मेजर्ड वैल्यू, ये है आपका क्लोजनेस एमोंग ऑल द मेजर्ड वैल्यू, यानी ऑल वैल्यू से कितना क्लोज है वो आता आपको प्रिसीजन। क्या आता, प्रिसीजन में क्या है कि क्लोजनेस अमॉन्ग ऑल मेजर्ड वैल्यू, और ये है क्लोजनेस अमॉन्ग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कितना क्लोज है उसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी, बोलेंगे उसको बोलेंगे प्रिसीजन। ओके, अब ये एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, यदि कितना एरर कम करेंगे उतना अच्छा होता है एक्यूरेसी। लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, यानी कि जितना एरर कम करेंगे उतना अच्छा क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगा। इट डिपेंड अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है उस पर डिपेंड करता है प्रिसीजन। ओके, देखिए, सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट में क्या फ़र्क है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट में क्या फ़र्क है, ठीक है, इसमें क्या डेफिनेशन, क्या फ़र्क है। फर्स्ट देखिए क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज़ यूनिट ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या लिखेंगे, इट इज़ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें लिखेंगे इट इज यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है, ये किसका है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। ओके, ये जो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ड्राइव्ड पे, और ड्राइव क्या है, डिपेंड होता है फंडामेंटल पे। तो क्या लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इट इज डिपेंडेंट यूनिट। ओके, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट, यानी ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, दिस इज डू नॉट डिपेंड ऑन ड्राइव लिखेंगे, इसलिए लिखे इट इज इंडिपेंडेंट लिखेंगे। नंबर इसका जो एग्जाम्पल्स लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या देखिए, मास का होता है आपको किलोग्राम, लेंथ मीटर एंड टाइम सेकेंड, ये एग्जाम्पल्स है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप, फर्स्ट लिखेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, a इक्वल टू आई प्लस जे, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ये आपका x है, ये आपका y एक्सिस है, सो एंगल बिटवीन निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, a इक्वल टू क्या है, 1i प्लस 1j, यहाँ पीछे कुछ भी नंबर नहीं तो 1 होता है, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। a इक्वल टू 1i माइनस प्लस 1j, ठीक है। अब निकालेंगे मोड, क्या निकालेंगे, मोड। कैसे निकालेंगे मोड, निकालेंगे a मोड निकालेंगे आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, 1 स्क्वायर 1 होता, 1 प्लस 1 रूट क्या होता आपका √2, क्या था √2। अब निकालेंगे एंगल, क्या निकालेंगे एंगल, तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax बाई a का मोड। x की वैल्यू कितनी है, 1, कितनी है 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है,
और ए का मोड की वैल्यू कितनी है, √2, कितनी है, √2, तो 1/√2। क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1/√2, एंगल कितना होता, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इक्वल टू 2i + 4j 14k एंड Q इक्वल टू, ओके। अब यहाँ निकालना है P + Q, क्या निकालना है, P + Q, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P + Q। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, तो लिखेंगे P + Q इक्वल टू 2i, इधर 4i, 2 + 4i कितना था, 6i प्लस 4j + 4 क्या था, 8j प्लस 14 + 10 24 के, ये दोनों की वैल्यू हो गई। ये P + Q की वैल्यू हो गई, P वेक्टर + Q वेक्टर की वैल्यू हो गई। आप क्या निकालेंगे, दोनों का मोड, क्या निकालेंगे, मोड, क्या निकालेंगे, मोड में क्या लेंगे, ये नंबर लेंगे आपका सिर्फ, क्या लेंगे, 6x² प्लस 8² प्लस 24² अंडर रूट 6² हाउ मच, 36, 64, 576 अंडर रूट, तो टोटल होता आपका 676 होता, अंडर रूट होता आपका 26 यूनिट, क्या था, 26 यूनिट्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। Okay, now question number 25. Question number 25. Two force magnitude 3 unit and 5 unit acts at 60 degree. Find resultant. One questions. Question 1 यहाँ तक होगा. Second questions. Two force right angle 7 unit and 24 unit. Find the resultant. दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को मैं वन टाइम कर रहा हूँ क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा क्वेश्चन है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने एक जगह कर दिया। देखिए कि दो फोर्स है, उसका 3 यूनिट है, इसका कितना है, 3 यूनिट है एंड 5 यूनिट है, कितने हैं, 3 और 5 यूनिट, एंड एंगल 60 है। इसमें कितना है, 7 यूनिट 24 यूनिट है, एंगल दिया हुआ नहीं है। एंगल आपको समझना है कि राइट एंगल दिया हुआ, राइट एंगल मतलब एंगल लेना है 90, कितना लेना है, 90 लेना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन निकालेंगे रिजल्टेंट, क्या निकालेंगे, आंसर लिखिए इसका, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताइए, क्या है, P² + Q² + 2PQ cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है रिजल्टेंट का। इसी जगह पे एक लेना है P, एक लेना है Q लेना है, 3 और 5 यहाँ पुट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए 3² + 5² + 2 × 3 × 5 × cos 60 डिग्री, cos 60, एंगल 60 दिया, 60 ले लेंगे। चलिए 3² क्या था, 3 3 9, 5 5 25 प्लस 2 3 6 5 30 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2, क्या थी, 1/2। 2 से करेंगे क्या था, 15, क्या था, 15, क्या था, 15। चलिए 9 25 15 क्या था, बोलिए 9 + 25 + 15, इसको ऐड कर लीजिए, आंसर आता आपका 49। इसका रूट निकालेंगे, कितना था, 7 यूनिट, क्या था, 7 यूनिट। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 है और 25 है, यहाँ पर P की जगह लिखेंगे 7 और Q की जगह लेंगे 25 और थीटा की जगह लेंगे 90, क्या लेंगे, 90, क्या लेंगे, 90। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखिए R इक्वल टू क्या लिखेंगे, P² + Q² + 2PQ cos थीटा अंडर रूट P हाउ मच, 7² + 24² + 2 × 7 × 24 × cos 90 डिग्री। ओके, अब ये देखना है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्या होती, 0, cos 90 वैल्यू क्या होती, 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाता, इसकी वैल्यू 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, 7 में 2 में क्या होता, पूरे के पूरे 0 हो जाते। तो आपका आंसर होगा 7² + 24², सॉरी 7² की वैल्यू कितनी थी, बोलिए 49 + 576, ठीक है, आपका आता 625, इसका रूट कितना होता, 25 यूनिट। यहाँ लिख दीजिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती, 0, क्या होती, 0 होती। ये दो क्वेश्चन वन टाइम्स में हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम था इसलिए मैंने एक बार कर दिया। नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीस, द पीस मस्ट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक बॉम्ब है, एक्सप्लोड करता है, बताना है कि दोनों किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बताना है। चलिए एक बॉम्ब ले लीजिए, इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, एक इधर भागा, एक इधर भागा, दो पार्ट में। इसमें कोलिजन पे बेस्ड है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स। कोलिजन के पहले मोमेंटम कितना है, कोलिजन के बाद में मोमेंटम कितना है। तो कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। कोलिजन से पहले ये है आपका बिफोर कोलिजन, क्या है, बिफोर कोलिजन, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
राइट हियर आंसर according to law of conservation of momentum okay, momentum before collision is equal to momentum after collisions. ओके, सो बिफोर कोलिजन कितना होता? 0 होता. सो लिखेंगे 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. इसका मोमेंटम 0, इधर m1 प्लस v1. आप क्या करेंगे, इस m2 v2 को क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे. तो आंसर क्या आता बोलिए, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2. इधर प्लस हो, इधर में क्या होता, माइनस हो गया. आप क्या लिखेंगे, इसका जो मोमेंटम है एक बॉल का, इसका दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों मोमेंटम सेम. लेकिन जो माइनस साइन दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. क्या लिखेंगे बोलिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट दे आर इन opposite directions. Okay, next question, what is inertia and what gives measure of inertia? Okay, inertia किसको बोलते हैं and what gives measure of inertia? Okay, inability of a body to change of state of rest or motion. Right here answer, the inability of a body okay, inability of body to change its state of rest or uniform motion. ये क्या है, ये यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में, दोनों कंडीशन हो, बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, तो क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी क्या है वो. ओके, इसको लिखेंगे इफ द एक्सटर्नल फोर्स, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर उस पर हम कोई बाहर का फोर्स नहीं लगेंगे, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ओके, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया. यानी कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. क्यों है रीजन इसका, इनर्शिया इज द रीजंस. एंड नेक्स्ट पार्ट इज देयर, क्या है नेक्स्ट पार्ट, व्हाट गिव्स मेजर ऑफ इनर्शिया. लिखेंगे मास गिव्स ए मेजर ऑफ इनर्शिया. क्या लिखेंगे आंसर, मास गिव्स measure of inertia. Okay, next questions, horse pull harder during the start of the motion than later explain. यानी हॉर्स जब राइडिंग करते तो जो हॉर्स क्या करते, पहले क्या होता, आपको मुश्किल होता, बाद में क्या होता, स्पीड हो जाता. क्यों, इसका रीजन है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शंस. आंसर राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग frictions is more than kinetic friction, therefore horse pull harder during the start. During start. Okay, next question, what happened to the coefficient of friction if the weight of the body doubled. क्या देखेंगे, आंसर लिखेंगे कि coefficient of friction किस पे, weight पर डिपेंड नहीं करता. coefficient of friction do not depend upon the weight of the body. Right here, coefficient of friction is do not depend on weight of the body. बॉडी पे डिपेंड नहीं करता. इसलिए क्या होता,
इट रिमेन अनचेंज, ये हमेशा ये अनचेंज यानी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है, क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर्स, दिस क्वेश्चंस। ओके, सो हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, इसका दोनों का डिफरेंस क्या है वो बताएंगे आपको। तो पहले क्या लिखेंगे, हीट, और यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। फर्स्ट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। जबकि टेम्परेचर क्या है, इट इज द सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी हॉट कितना है, कोल्ड कितना है, उसके सेंसेशन को बोलते, क्या बोलते, टेम्परेचर बोलते। क्या बोलते, टेम्परेचर। इट इज अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ओके, ये क्या है कि सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बॉडी है, और ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, हीट क्या है, एक सोर्स है। क्या है, हीट इज अ सोर्स। हीट कहाँ से निकलता है, किसी सोर्स से निकलता। क्या लिखेंगे, हीट इज अ सोर्स, हीट इज अ सोर्स। और क्या लिखेंगे, टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट है, इट इज एन इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट। इसका लिखेंगे यूनिट, व्हाट इज यूनिट, हीट यूनिट क्या होता, बोलिए, कैलोरी। क्या होता, कैलोरी होता आपका, जॉल होता आपका यूनिट, इसका जॉल होता, वो कैलोरी होता है इसका यूनिट। इसकी यूनिट क्या बोलिए, इट्स यूनिट इज कैल्विन, यूनिट इज कैल्विन। इसकी यूनिट क्या है, कैल्विन है, इसकी यूनिट क्या है, जॉल है। कैल्विन को हम लोग क्या लिखते, कैल्विन। ओके, सो ये क्वेश्चन था हीट एंड टेम्परेचर में क्या फर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इसको देखिए, ध्यान से देखिए क्या है, किसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, किसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, पहले हम देखेंगे बॉयल्स लॉ, देखेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ओके, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पी को यहां भेज देंगे तो क्या होता, पीवी। क्या होता, पीवी इक्वल टू क्या होता, कांस्टेंट। क्या होता, कांस्टेंट। अब फिर लिखेंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। अब इसी बात को क्या करना है, डिफिनेशन बनाना। क्या बनाना है, डिफिनेशन बनाना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली, पी नीचे है ना, इसलिए बोलते इनवर्सली, बोलते क्या बोलते हैं, इनवर्सली। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास। यहां पर मास एंड टेम्परेचर को क्या करते, कांस्टेंट। क्या करते, कांस्टेंट। इसको अगर चेंज नहीं करेंगे तो, अगर दोनों को चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब आप डेफिनेशन लिखिए, लिखें डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, एट गिवन मास एंड गिवन टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या गिवन भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, at constant mass and temperature, volume is inversely proportional to pressure. The volume is inversely proportional to pressure. इसको बोलते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। कितना इजी डिफिनेशन है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। वी को यहाँ पर देंगे, वी हो जाएगा, पी वी कांस्टेंट, P1 V1 P2 V2। ओके, अब देखेंगे नंबर 2, देखेंगे चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टी जाएगा नीचे तो क्या होता, V बाई टी क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब लिखेंगे V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू V3 बाई T3 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर भी क्या है कि वो वॉल्यूम और टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, मास बच गया और प्रेशर बच गया। मास प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों क्या है आपका, कांस्टेंट है, मास भी और प्रेशर दोनों भी। डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे, एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट मास एंड
टेम्परेचर एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो गया। ये क्वेश्चन पूरे 31 हो गए। इस 31 में से 2 क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया। ओके, टोटल आपका 29 क्वेश्चन हुआ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको कंपलसरी आपको कम से कम मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, 6 क्वेश्चन। 5 तो इसमें कुछ डॉट की बात ही नहीं है। 30 क्वेश्चन में 29 क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा। और पार्ट 2 अगर पढ़ेंगे, पार्ट 2 में भी आपको कम क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन है। अगर वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको 3-4 क्वेश्चन वहाँ कवर आपका हो जाएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी VSAQ क्वेश्चंस फॉर IP, ओके, फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, थैंक यू।